Kinetic energy of bodies. Kinetic energy of a body is defined as. Kinetic energy of body is defined as energy possessed by the body. Is defined as energy possessed by the body by virtue of its motion. Energy possessed by the body by virtue of its motion. For a body of mass m, for a body of mass m moving with speed v, for a body of mass m moving with speed v, kinetic energy is given by. For a body of mass m moving with speed v, kinetic energy is given by Ek is equals to half mv square. Ek is equals to half mv square. Next paragraph में लिखो mathematically kinetic energy is the work done. Mathematically, kinetic energy is the work done to increase the speed of the body from 0 to v. Work done to increase the speed from 0 to v on a frictionless surface. On a frictionless surface. The force acting on the body, bracket में लिखना है इसको. The force acting on the body can be constant or variable. The force acting on the body can be constant or variable. Force acting on the body can be constant or variable. So first is when constant force acts. So हम assume कर रहे हैं कि A पे body rest पे है A से B तक. We apply a force F and its speed increases to V. तो हम work done निकाल लेंगे A से B तक कितना होगा and that will be stored in the form of kinetic energy. You can write consider a body which is initially at rest. Consider a body which is initially at rest at point A. Consider a body which is initially at rest at point A on a horizontal frictionless surface. On a horizontal frictionless surface. If a constant force F is applied, if a constant force F is applied on a
on a horizontal frictionless surface. If a constant force F is applied and the speed of the body increases from and speed of the body increases from 0 to v as it travels through distance s, as it travels through distance s, then work done by the forces as it travels. a distance s. ये तो सेम डेरिवेशन है जो नाइन्थ में की थी. बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो u को जीरो पुट कर दिया. w comes out to be half mv square. You can write this work done will be stored in the form of this work done will be stored in the form of this work done will be stored in the form of kinetic energy of the body. This work done will be stored in the form of kinetic energy of the body. Will be stored in the form of kinetic energy of the body. Thus ek is equals to इसको एक और फॉर्म में याद रखना. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. m से मल्टीप्लाई कर दिया m से डिवाइड and m square v square is P square. p square by 2m. बिकॉज ये भी काफी कंसेप्चुअल में यूज होगा फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ मोमेंटम. सेकंड केस इज ए फोर्स इज वेरिएबल. अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगी तो सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट को नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा. हमें सिर्फ मेथड बदलना है. यू कैन सिंपली से कि अगर मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली dx तो वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज f डॉट dx और f को हम लिख देंगे m a dx एंड फिर दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे. अदरवाइज मेथड नहीं बदलना, सिर्फ इंटीग्रेशन से करना, कंसेप्ट सेम है. सो वी से व्हेन वेरिएबल फोर्स x work done for small displacement.
A is एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलस मेथड में? Acceleration. by इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, mdx/dt. अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, dw is equal to mvdv, what does it mean? फिजिकली इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये कौन सा वर्क डन है? सर उस पॉइंट के ये वर्क डन मतलब अगर आपने किसी को बताना है mvdv, दिस इज द वर्क डन टू, this is work done to increase the velocity of the body from v to v plus dv when its mass is m. कैसे वर्क डन है वेलोसिटी को v से v प्लस dv बढ़ाने के लिए, हमने टोटल वर्क डन निकालना है जीरो से v तक बढ़ाने के लिए या जीरो से v नॉट तक बढ़ाने के लिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट जीरो से v नॉट ले लेंगे. So, इसको हम लिखेंगे दिस इज वर्क डन to increase speed from v to v plus dv for a body of mass m. Total work done from 0 to v naught. vdv मतलब v1 dv, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? v square by इससे That means half mv naught square. And again, this work done will be stored in the form of potential energy. So kinetic energy. Ek is equals to half mv naught square. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो. So जो work done किया that is stored in the form of kinetic energy. Clear है सबको? यस अगर मैं वेलोसिटी को जीरो से u से v बढ़ाता तो वर्क डन कितना आता? Velocity is half increased from u to v. mv square minus u square. Half mv square minus half mu square मतलब change in kinetic energy will be work done. इसमें क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसलिए उसी को वर्क डन ले लिया हमने. Simulate and numerically based on these. Just देखो.
The displacement of a particle. The displacement of a particle of mass 1 kg on a smooth surface. Displacement of particle of mass 1 kg on a smooth surface is given by x is equals to t cube by 3. Displacement is given by x is equals to t cube by 3. Find work done by external agent in first 1 second. Work done by external agent in first 1 second. 1 second में work done बताना है कितना होगा. Work done by external agent in first 1 second. मेरे को ये एक फॉर्मूला दिया. मेरे को पहले इसको देख के बताओ फॉर्मूला को. ये कांस्टेंट फोर्स का न्यूमेरिकल है या वेरिएबल फोर्स का. x is equals to t cube by 3. हमें पहली चीज यही चेक करनी होती है हमेशा. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. dx by dx by dt. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी t क्यूब की. 3d स्क्वायर. तो वेलोसिटी इज t स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज dv by dt. t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन. तो ये कांस्टेंट फोर्स का न्यूमेरिकल है या वेरिएबल फोर्स का. वेरी कर रहा है उस मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रही है. Yes, sir. तो फोर्स भी वेरी करेगी. वर्क डन बताना है कितना फर्स्ट 1 सेकेंड में. ठीक है. अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करता हूं, इसको मैंने लिख दिया मान लो एम ए डी एक्स. वेरिएबल कौन सा है. acceleration Acceleration. एक्स. ए तो वेरिएबल होता ही है इसमें. वेरिएबल उसमें ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है. हमें दिया फर्स्ट 1 सेकेंड. मतलब टाइम को वेरिएबल मानना है. टाइम को वेरिएबल मानना है तो क्या चेंज करूं मैं इसको. मैं इसको ऐसे लिख दूं. लिख सकता हूं ऐसे. Yes, sir. dt से मल्टीप्लाई कर दिया dt से डिवाइड. dx by dt क्या होता है. V. loss वेलोसिटी. a कितना है हमारे पास 2t. वेलोसिटी कितनी है. V square. लिमिट 0 से 1. मास 1 kg दिया है तो उसको छोड़ दो. 2t क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी. क्या है सॉल्व करके. से कन्वर्ट
देखो समझ में आ रहा है कैसे किया? मैं अगर आपसे पूछूं t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0. t इज इक्वल्स टू 1 पे कितनी थी? 1. वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी पीछे क्या था कि अगर 0 से v की जगह u टू v करते तो यही फॉर्मूला बनता हमारा, हाफ मास इज 1 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां से भी वही आंसर आ रहा है। ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं बेसिकली फिजिक्स में, दिस इज वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो पिछली डेरिवेशन की थी उसको दोबारा से अगर आप देखो तो इट्स नथिंग न्यू। मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स u से v लेता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वो 0 से v लिया इसलिए ये बना है। तो जनरल फॉर्मूला तो यही होगा कि u से भी वेलोसिटी बढ़ाई है तो जितना वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ गई क्योंकि वर्क डन किया। तो ऐसे भी कर सकते हो इसको आप, ऐसे नहीं करना तो, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज एप्लीकेबल बोथ फॉर कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल फोर्सेस। ये दोनों जगह लगेगा। देखो दोनों मेथड्स में कोई नहीं आ रहा समझ तो कोई भी डाउट है तो क्लियर है दोनों मेथड? Yes, sir. नेक्स्ट यू राइट। You can write kinetic energy of a man is kinetic energy of a man is half the kinetic energy of the boy of half his mass. Kinetic energy of man is half the kinetic energy of a boy of half his mass. If the man speeds up by 1 meter per second, if the man speeds up by 1 meter per second, their kinetic energies are equal. Find initial speed of man and the boy. रिपीट करना। Kinetic energy of man is half the kinetic energy of boy of half his mass. If the man speeds up by 1 meter per second, their kinetic energies are equal. Find initial speed of man and the boy. हमें बहुत सिंपल दिया है कि एक आदमी है जिसका मास बॉय के मास से हाफ है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बॉय से हाफ है। मैन ने अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ाई तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई। तो हमने बताना है इनिशियल स्पीड ऑफ मैन एंड द बॉय। करो सॉल्व इसको। हमने सिंपल इक्वेशंस बनानी थी।
हमें पहले दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन. बॉय का मास भी हमारे को क्वेश्चन में हाफ दिया. तो अगर मैं मैन की काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूँ हाफ कैपिटल M इंटू कैपिटल V स्क्वायर, दिस इज हाफ ऑफ बॉय का मास m/2 है. तो मेरे पास एक सिंपल रिलेशन आ गया. implies kinetic velocity of man is half of boy. ये फर्स्ट कंडीशन है. कैपिटल V मैं मैन के लिए यूज कर रहा हूँ, स्मॉल v बॉय के लिए. इफ मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड, the kinetic energy of man becomes, this is equal to kinetic energy of boy. फिर दोनों की kinetic energy इक्वल है. V is equals to twice of capital V. Half cancel, M cancel. So you get V plus 1 का whole square. नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो 1 प्लस सिंपल 9th वाली फिजिक्स है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको पहले से नहीं पता था. सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपको दो. क्लियर है सबको? नेक्स्ट यू राइट. A particle of mass m. A particle of mass m is moving in a horizontal circle. A particle of mass m is moving in a horizontal circle. And its centripetal force is equals to minus k by r square. And centripetal force is minus k by r square. Find kinetic energy of the body. Find kinetic energy of the body. Centripetal force दिया है minus k by r square. जैसे k can be some constant. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव करता है तो सेंट्रिपेटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है माइनस के बाय आर स्क्वायर. तो हमने बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की. सर -k/2
जल्दी है कोई? मेरे को बताओ, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ सकती है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास पॉजिटिव, वी स्क्वायर पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव में होती नहीं। तो इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती? अच्छा मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, या टोटल एनर्जी बताओ। चलो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ये चैप्टर तो सबने पढ़ लिया। आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी है, फॉर्मूला। इनफैक्ट उसके आगे भी पढ़ा है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, R1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू का भी रट्टा मारा होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। दिस इज नॉट राइट। आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर्मूले नहीं पता, बोहर्स मॉडल पढ़ लिया, टोटल तो पढ़ा ही होगा 101%। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। आप आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते थे, एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकाली थी? निकाली है या नहीं निकाली? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली है या नहीं निकाली है, तो बता दो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं वैल्यू नहीं पूछा, निकालनी आती है? क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो पता है आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में फर्क क्या है? वर्क फंक्शन भी पढ़ा था ना मेटल्स का, पढ़ा आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, Yes. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। मेरे को बताओ दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं सोडियम का केस लेता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? पॉजिटिव। क्या? साइंस के स्टूडेंट्स हो क्या आर्ट्स ली हुई है, रटते रहते हो हर चीज को? मैंने आपको एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन बताओ, ये सेम होते हैं या अलग होते हैं? दोनों में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी निकाली है, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था जब आपने पढ़ा कि दो सिमिलर क्वांटिटीज हैं या दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई कहां से? आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से निकाली है? सर जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था क्या दिया हाइड्रोजन था, वही एटम। तो पूछ रहा हूँ, क्या दिया था? मैं अगर आपको बोलूं से हीलियम एटम के लिए फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में एनर्जी बताओ तो कितनी होगी? ये तो हाइड्रोजन के लिए है ना, -13.6। हीलियम एटम के लिए फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? He पॉजिटिव। He पॉजिटिव का मतलब सर वन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक निकाला हुआ है मैंने। तो He पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है? हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या कम है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है या हीलियम का?
कुछ आता है एनर्जी का कंसेप्ट जो केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो? मेरे को बताओ, हाइड्रोजन से रिमूव करना आसान है या हीलियम से, और कितना डिफरेंस है? किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए और क्यों चाहिए? हाइड्रोजन से ज्यादा आसान होगा क्योंकि हीलियम तो स्टेबल होता है। हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है मैंने, हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन ही है। सर हीलियम से निकालना ज्यादा हीलियम से निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल है, क्यों? ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए निकालने। कितनी ज्यादा? कितनी ज्यादा? सर कैलकुलेट। क्या करो अभी कैलकुलेट? ओरल वाली कैलकुलेशन है ये तो। यस कैलकुलेट। 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा चाहिए, क्यों? फॉर्मूला क्या था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? और ये 13.6 ही क्यों चाहिए? 13.6 ही क्यों चाहिए? आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं आपसे बोल रहा हूँ 13.6 क्यों चाहिए? उसका पूरा नेगेटिव फॉर्मूला एनर्जी, आता है 2 पाई। नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सिग्निफाई करती है फिजिकली? इसका मतलब क्या है? आपने ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन के लिए Z1 था, हीलियम के लिए 2 था, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा। उस अकॉर्डिंगली नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव एनर्जी क्या सिग्निफाई कर रहा है? सर अट्रैक्टिव फोर्स है ज्यादा, जो अट्रैक्टिव आइसोलेटेड। फोर्स? सर जो आइसोलेटेड एटम है उसकी एनर्जी जीरो होती है, वो जो होता है। आइसोलेटेड एटम की एनर्जी जीरो होती है? सर एटम की एनर्जी, एटम नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे जो दूर पड़ा है। उसकी एनर्जी जीरो होती है, क्यों? सर क्योंकि क्यों उस पर जीरो? अट्रैक्टिव फोर्स नहीं करती कोई न्यूक्लियस की, वो बहुत ज्यादा इसका दूर मतलब है। जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही उसकी एनर्जी जीरो होती है, आप ये कहना चाहते हो? सर नो, मतलब उनपे इनपे नहीं, अट्रैक्ट। मेरे को पहले ये नहीं कहना चाहते। सर मैं मतलब जो आप पूछ रहे हो कहना चाहता हूँ कि मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण उसकी एनर्जी कम हो रही है, नेट एनर्जी कम मतलब हो रही है। ओके, आप कहना चाहते हो जिस पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, यस सर। क्यों? मैं नहीं मानता ना, मेरे को समझाना पड़ेगा। सर उसको नेट एनर्जी फिर जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी कम नहीं होगी सर। कौन आंसर दे? ध्रुव, यस सर। आप अपनी टोटल एनर्जी बताओ मेरे को, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? आपकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? सर अभी मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं लॉस्ट रेस्ट पे हूँ, सर जीरो है। सर मैं मूवी। आपकी जीरो एनर्जी होती ना तो डिसइंटीग्रेट कर जाते बेटा। आप एज अ ध्रुव एंटाइटी एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी बाउंड सिस्टम, इट विल ऑलवेज हैव नेगेटिव एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब तक बाउंड है उसकी एनर्जी नेगेटिव है। फ्री करना है तो जीरो करनी है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आएगी अगर जेड को 1 लू, एन को भी 1 लू? सोडियम हाइड्रोजन के लिए तो दिस इज 13.6। -13.6। नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाई करती है कि बाउंड सिस्टम है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। फ्री अनबाउंड सिस्टम, उसकी एनर्जी जीरो होती है। तो इसको जीरो करने के लिए इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6। उससे ज्यादा कुछ भी दे सकते हो, मिनिमम 13.6 चाहिए। अब मेरे को एक चीज और बता देना, कल तक का टाइम दे रहा हूं, सोचना, बताना। वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सिंपल चीज पूछी थी, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी थी -k/r²। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज इट्स अट्रैक्टिव फोर्स।
सर फिर वो मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट इज k बाय आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती कभी भी। सर्कुलर मोशन के लिए ना जनरल याद रख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, अर्थ मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, सॉरी सन, ऐसी जितनी भी सर्कुलर मोशन होंगी, और ये केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएगा, फिजिक्स में कम आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज सॉरी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की सॉरी जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली टोटल, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस 13.6। मैं आपसे अगर इसकी एनर्जी पूछता फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, यू कैन से इट्स माइनस ऑफ माइनस 13.6। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी आ गई? सर जितनी पहले थी माइनस 13.6 टोटल एनर्जी। यही होती है ना काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। सो काइनेटिक एनर्जी इज 13.6, potential is minus 27.2 and total energy is minus 13.6। सर ये आएगा फॉर्मूला। एक तो यही फॉर्मूला यूज किया था बोर्स ने, एक फॉर्मूला अभी हम अगली क्लास में करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये अभी किया नहीं हमने, माइनस एफ डी आर। तो एफ की वैल्यू डाल देंगे, माइनस के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, विल गेट दैट रिजल्ट। जैसे मैं अगर आपको करके दिखा दूं एक बार, ये अभी पढ़ा नहीं फॉर्मूला, वैसे हमने कल करना है, मैंने इसलिए पोटेंशियल पूछी भी नहीं थी क्वेश्चन में। वन बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? आर रेज़ टू पावर माइनस 2 की -1/r। इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आया? माइनस के बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी आ गई। दिस इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एंड डबल ऑफ पोटेंशियल। तो बोहर ने भी ऐसे ही किया था कि काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, पोटेंशियल निकाली थी, दोनों को ऐड किया था, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी आई थी। सर ये फॉर्मूलास कहाँ से आई? U इज इक्वल टू T और EX माइनस AT। ये वाला तो आता है ना, ये तो आता है आपको काइनेटिक एनर्जी का। वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था? यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, वेरी गुड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है तो टोटल चेंज इन काइनेटिक प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? सर टोटल मैकेनिकल जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मिला के जीरो। काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, डेल्टा ई के किसके इक्वल था? वर्क डन के। और मैं कह रहा हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई के, मतलब माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है? माइनस एफ डी आर। सब कुछ फिजिक्स में रिलेटेड चलता है, ऐसा नहीं कहीं से रैंडम कोई भी कंसेप्ट उठा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। आपने इसका प्रूफ किया था इफ यू रिमेम्बर 9th क्लास में। एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है,
बिकॉज जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी। तो अगर डेल्टा ई के पॉजिटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव में होगा। ये वही रिलेशन लिया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी का जो नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल, और ये वर्क के इक्वल है। वर्क का फॉर्मूला डाल दिया माइनस एफ डी आर। ये मैंने कल कराना है, सो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो बेशक। ये मैंने नहीं कराया अभी, ना ही मैंने अभी पूछा था, ऐसे बताया आपको किस रिलेटेड चीजें होती हैं। केमिस्ट्री को भी रटो मत, समझो। नेक्स्ट लिखो। Displacement x of a particle of mass m kg. Displacement x of a particle of mass m kg moving in one dimension. Displacement x in meter of a particle of mass m kg moving in one dimension under the action of a force is related to time in seconds as t is equals to under root x plus 3 is related as t is equals to under root x plus 3. Find the work done in first 6 seconds. Find work done in first 6 seconds. Okay. Formula is t is under root x plus 3 means under root x is t minus 3. मैं पहले x का फॉर्मूला देखना चाहता हूं। x क्या हो जाएगा? बिकॉज जब तक एक्स टी रिलेशन नहीं आएगा मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल है। ट्रिक के लिए आपको बता दूं, अगर टी की पावर 2 या इससे कम है, 2 है तो कांस्टेंट फोर्स होती है। लार्जेस्ट पावर मतलब यहाँ पे टी की पावर 2 है, इधर 1 है, इसमें है नहीं। तो अगर टी की पावर 2 है तो कांस्टेंट फोर्स होगी, लार्जेस्ट पावर। अगर 2 से भी कम है तो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी अगर 1 नहीं हुआ तो, और अगर 2 से ज्यादा हुई तो वेरिएबल फोर्स होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में था टी क्यूब बाय 3, तो टी की पावर 3 थी तो इसलिए वेरिएबल फोर्स, इसमें 2 है तो कांस्टेंट ही आएगी। तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। वेलोसिटी इज dx by dt, dx by dt बोलो कितना हुआ? 2t minus 6. एक बार ये और डिफरेंशिएट कर दें तो 2. मतलब कांस्टेंट है ये फोर्स, ए कांस्टेंट है। तो हमने बताना है फर्स्ट 6 सेकेंड्स में व्हाट विल बी द वर्क डन। कैसे करें? वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। Changing kinetic energy से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। तो t इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? v कितना है t इज इक्वल टू 0 पे? -6. t इज इक्वल टू 6 पे कितना है? 6.
Work done is change in kinetic energy. मास कितना दिया था? मास दिया है क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन में मास कितना है। एम ही है। M. एम ही है तो फिर तो एम ही लेना पड़ेगा। So this will be the work done, 36 m. दूसरा मेथड क्या हो सकता है अगर मेरे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना तो कैसे करूं? ग्राफिकल मेथड। कैसे? ग्राफिकल मेथड से करो या वर्क डन इज एफ डॉट एस उससे करो, बट करो। क्या है आंसर? यहां से आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 जूल ही आ रहा है सर। 36 माइनस 36। ग्राफ से देखो, ग्राफ से 0 आएगा। सर एफ डॉट एस। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 9। 9। टी इज इक्वल टू 6 पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 9। 9. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। 0. वर्क डन भी 0। इसके आगे लिख लो W इज इक्वल टू 0, पहले इसको लिख दो W इज इक्वल टू 0, फिर उसके आगे दूसरा मेथड लिख लो ऑल्टरनेट मेथड में। एट T इज इक्वल टू 0, at T is equal to 0, x is equals to 9 meter, and at T is equal to 6, and at T is equal to 6 seconds. And at T is equal to 6. X is equals to 9 meter. This means that displacement of the body, this means that displacement of the body from 0 to 6 seconds is 0. Displacement of the body from 0 to 6 seconds is 0. Therefore, work done is also 0. इसीलिए उन्होंने मास दिया नहीं था, बिकॉज वर्क डन तो 0 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Force acting on a particle moving in straight line varies with velocity s.
F is equal to K by V. F is equal to K by V, where K is constant. Find work done by this force in time T. Find work done varies by this. as F is equal to K by V. Find work done by this force in time T. हमें F की वैल्यू दी है K by V, हमने बताना है वर्क डन कितना होगा T सेकेंड्स में. वर्क डन का फॉर्मूला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. So work done in T seconds is इंटीग्रेट कर दो 0 से T, that means KT. ये स्टेप समझ आया. dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, dx by dt इज वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी और ये कैंसिल हो जाएगा. So work done is KT only. आपने 9th में पावर का कंसेप्ट पढ़ा, तो पावर क्या होती है पढ़ा है ना, है ना. मैं इस क्वेश्चन में अगर पूछूं पावर ऑफ द सोर्सेस, पावर कितनी है, वर्क डन इज KT, देन पावर इज K. K. K, because power is work upon time. Yes, sir. अब उसको आप दो वे में कर सकते थे, या तो सिंपल वर्क अपॉन टाइम कर दो, या आप इसको जो बेटर मेथड रहता है हम ऐसे लिखते हैं रेट एट विच वर्क इज डन dw by dt, तो वो आएगा के ही उससे भी. सो कैन रेट नेक्स्ट. A force F acts on a body. A force F acts on a body such that it is always at an angle of 45 degree to the direction of motion. It is always at an angle of 45 degree to the direction of motion. The body moves in a circle and covers a semicircle of radius r. It covers a semicircle of radius r. What is work done by the force? What is work done by the force? When your body semicircle में move कर रही है and force acting is always
एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द मोशन। हमने बताना है वर्क डन बाय द फोर्स कितनी होगी। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। F pi R by root 2. कितनी? F pi R by root 2. एफ पाई आर बाय रूट 2, ठीक है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी अगर सेमी सर्कल पूरा किया तो? Pi R. पाई आर एंड फोर्स एफ एस कॉस 45। वर्क डन इज एफ एस कॉस 45, एस की वैल्यू पाई आर, so f pi r by root 2. Work done is fs cos 45 and s is pi r. हो गया सॉल्व सबका? Yes. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, कल पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन करेंगे एंड प्लस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फिर उनके न्यूमेरिकल्स।